جائز کے تاریخی جلوسوں اور ان کی تاریخ کے مختصر سے تعارف کے سلسلے میں آج ہم پہنچ گئے ہیں اس جلوس کی بات کرنے کہ جس جلوس کو جائز کا سب سے روایتی اور سب سے تاریخی جلوس کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا علم جس میں ایسا رعب، ایسی کشش اور ایسی جاذبیت ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ مجمع کے اعتبار سے اگر بات کریں تو سب سے بڑا مجمع چہلم اور سفر کے جو جلوس ہیں ان میں 20 سفر کے علاوہ جو مجمع جمع ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مجمع 13 سفر کے جلوس میں آتا ہے۔ یہ جلوس جس کے بارے میں ہم بات کرنے آئے ہیں سخاوت حسین صاحب کے نام سے منسوب ہے، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد اس سلسلے کو اس کے بعد سید مقبول حسین صاحب اس وقت جو سی ایف او رہ چکے ہیں اور ریٹائرڈ سی ایف او ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس طرح ان کے پاس جلوس آیا اور کس طرح انہوں نے اس جلوس کی شان و شوکت میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مقبول حسین جیسی صاحب، ایک مشہور شاعر ہیں اور پی سی ایس لیول کی گریڈ کے پد سے ریٹائر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بتائیں اس جلوس کے بارے میں کچھ مختصر۔ السلام علیکم۔ یہ 13 سفر کا جلوس قدیمی تو ہے ہی ہے، ویسے سبھی جلوس قدیمی ہیں یہاں پہ اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، لیکن 13 سفر کے جلوس کی اپنی بہت یعنی اپنی الگ ایک ہسٹری ہے اور الگ ایک ویلیو ہے۔ لوگ اس کی زیارت کے لیے جلوس یعنی صرف جائز اور نصیر آباد نہیں بلکہ اور اغل بغل کے لوگ بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جلوس بہت پرانا کا مطلب یہ کہ 100 سال سے تو زیادہ کا ہے ہی ہے، بلکہ اور بھی جتنے جلوس ہم اس لیے کہ ہمارے والد مرحوم سن 21 میں پیدا ہوئے اور وہ بتاتے تھے کہ ہم نے جو بچپنے سے ان جلوسوں کو سب کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 21 میں والد ہمارے جب پیدا ہوئے تب سے وہ جلوس دیکھ رہے تھے۔ اب کب اس سے پہلے بھی کب اٹھنا شروع ہوا ہے اس کا کوئی خاص تاریخ یا ڈیٹ کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے، لیکن یہ خاص بات ہے اس میں کہ ہر جلوس کے لیے کہ سب رجسٹرڈ ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دی جا چکی ہے، مل چکی ہے اور یعنی 50 سال پہلے کی ہے۔ یہ جلوس 50 سال سے تو میں خود اٹھا رہا ہوں۔ 50 سال کے پہلے ہمارے والد مرحوم بھی تھے اور اس کے علاوہ ذرا سا واقعہ بتائیں مختصراً کہ کس طرح سے ان کے یہاں جلوس تھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے۔ یہ جلوس سخاوت حسین صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس جلوس کو بڑے انہماک سے بڑے شان و شوکت سے وہ اٹھاتے تھے، مجلسیں بھی کرتے تھے، ان کا گھر تھا، گھر میں عزا خانہ بھی تھا، عزاداری بھی ہوتی تھی، لیکن بس وہ انہوں نے جب احساس کیا کہ یہ جلوس اور عزاداری جو ہے ہمارے بعد کیا ہوگا اس کا، تو انہوں نے جو کچھ بھی یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن جو ایک ان کی 7-8 بسوا زمین تھی تو وہ زمین ان کا اپنا گھر تھا، اس طرح سے کچھ انہوں نے ایک طرح سے وقف کی طور پر انہوں نے لکھ دیا تھا، حالانکہ رجسٹری نہیں ہو پائی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اپنی حساب سے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے لڑکے ان کے بھائی آتے رہے، وہ 2-4 سال انہوں نے کیا اور اس کے بعد پھر یہ بھتیجے آتے رہے۔ ابھی ٹمٹم کہتے ہیں، وہ ان کے کون تھے سخاوت صاحب؟ یہ بھائی تھے۔ اچھا ایک بات اور ہمارے دیکھنے والوں کو، نئی نسل کے لوگوں کے لیے ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ عابد ٹمٹم جنہیں کہا جاتا ہے، دراصل ٹمٹم اس سواری کو کہتے تھے جو تانگے نما ہوتی تھی، جس میں گھوڑے بندھے ہوتے تھے اور اس زمانے کی کار کی حیثیت رکھتی تھی، لہٰذا ان کے پاس تھی، اس سے وہ چلتے تھے، اس لیے عابد صاحب کو اس زمانے میں عابد ٹمٹم کہا جانے لگا۔ یہ ایک ان کے لیے اعزازی بات تھی جو اس زمانے میں آپ کو نہ سمجھ میں آتی ہوگی۔ جی تو عابد صاحب کے بعد پھر سید رضی ان کے لڑکے تھے، وہ آتے رہے، 2-4 سال وہ آئے، لیکن وہ بھی اس کی ذمہ داری کو لینے سے کتراتے رہے اور خرچہ بھی اٹھانا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ ان کی بھی کوئی سید رضی کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن
बहनों वो इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहते थे। तो ऐसे ही बात में उनके ऊपर हम लोग कह रहे थे कि भाई जुलूस उठाइए और उसका जो हमसे खिदमत हो सकेगी हम लोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो कहे नहीं, हम नहीं उठाएंगे, हम तो नहीं उठाएंगे, और तुम उठाओगे? हमने कहा हम उठाएंगे। ऐसे ही बात में उन्होंने कहा ठीक है। जब 13 का जुलूस उठा, बैठने के बाद उन्होंने हमें आवाज़ दे के कहा मकबूल इधर आओ। हम उनके करीब में पहुँचे और उन्होंने आलम मुबारक हमारे हाथ में दिया और कहा कि अब ये आलम की और जुलूस की और आज़ादारी की जिम्मेदार तुम हो। तो इस तरह से बहनोई वो जुलूस कायम हुआ। हमारे वालिद साहब, हमारी वालदा, हमारे भाई, हमारी बहनें, पूरा ख़ानदान। इधर हमारा ननिहाल भी, यानी मोहम्मद बाकर साहब हमारे नाना थे, और इफ्तिखार महदी और इकबाल महदी और उनके सब बच्चे वगैरह सब के सब मिल के ये जुलूस में अपना कुछ ना कुछ रोल अदा करते रहे। तो उन लोगों की नज़र करम रही कि ये जुलूस कामयाब होता रहा। हमारे नाना ने तो अपनी ज़मीन भी दे दी थी सामने की चबूतरा, जो अब आज का भी फ़िलहाल है, कि ये उस पर आग का मातम करो। उसी वक्त से आग का मातम शुरू हुआ इस जुलूस में। पहले हो सकता है किसी ज़माने में, सखावत साहब के ज़माने में आग का मातम पहले भी होता रहा होगा, लेकिन हमारी होश में तो हम ही ने शुरू किया था। उससे पहले 8-10 साल जो बचपने का था हमारा, उसमें हमने नहीं देखा था कि एक पहलू ये भी है कि जब मकबूल जायसी साहब इस जुलूस को, इस अलम को वहाँ से ले आए तो इन्होंने इसे अपने आबाई मकान से उठाना शुरू किया। उसके बाद वक्त बदला, इन्होंने अपना अलग एक अज़ाखाना तैयार किया जिसका नाम मकबूल इमाम बाड़ा है, जो जायश का एक वाकई मकबूल इमाम बाड़ा है। वहाँ से ये जुलूस बरामद होता है, जो अब से थोड़ी देर में जुलूस बाहर निकलेगा। हम उसकी झलक भी दिखाएँगे। जी, सन 58 में बल्कि 55 में वो भैया वगैरह आई थी, उसमें बहुत से मकान गिर गए थे यहाँ पे। तो सखावत साहब का भी मकान बिल्कुल करीब गिर चुका था। बहनों, हमारे आबाई यानी हमारे वालिद का ख़रीदा हुआ मकान, जिसको आम तौर से उस ज़माने में भी और कभी कभी कुछ लोग आजकल भी घुमरी कुआं के नाम से मशहूर है, और आज भी कुछ पुराने लोग उस नाम से याद कर लेते हैं। तो बहनों, वो हम अपने मकान से ले आए, हमारे वालिद आए ने और हमारे वालदा वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये जुलूस का सिलसिला चालू रहा, यानी 50 साल। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, और इतने देर लंबी बात हो रही, लेकिन चूँकि इम्पॉर्टेंट जुलूस है और बहुत अहम जुलूस है, इसलिए इसके बारे में ये बात कही जाती है कि इसमें मौजिज़ा भी हुआ है। यूँ तो सभी अलम मौजिज़ा हैं, लेकिन इस अलम के लिए खुसूसी एक बात है। कुछ हल्का सा बताएं क्या मामला था। ये सन 28 से पहले का वाक़या है। हमारे दादा ज़कीजान मरहूम उस वक्त सदर इमाम बाड़े के मुतवल्ली थे, इसलिए कि कागजात में मिल पाया। इसमें कुछ टेंशन हुआ, फिर पुलिस की रिपोर्ट दी गई, वो हमारे दादा की तरफ से ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई थी। तो लोग कुछ ऐसे अनासिर पर यहाँ पे सर उठा लिए कि हम तो साहब इधर से जुलूस नहीं जाने देंगे, और ये हमारा मोहल्ला है और हमारा रास्ता है। इसमें काफ़ी टेंशन हो गया और आपस में ही लोग एतराज़ करने लगे। पुलिस आई, फिर अदालत तक नौबत गई, और इस तरह से ये सिलसिला जो है बहुत दिनों तक चलता रहा। तो अब वो खैर वो नेक्स्ट साल हुआ, पुलिस ने कहा कि अच्छा भाई, आप ये अपोजिट वालों से जो थे, जो रोकना चाहते थे, उनसे कहा कि अच्छा। बात सिर्फ ये थी कि शिया हज़रत का कहना था कि ये हमारे जुलूस के एहतराम के ख़िलाफ़ है कि कोई भी जुलूस के सामने गुज़रते वक्त बैठा रहे या उसकी बेइज्जती और बेहुरमती करने की कोशिश करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए वो पहले
दूसरे और जो लोग एतराज़ करने वाले थे उन लोगों ने कहा कि हम तो बैठेंगे, अब हमारा दरवाज़ा है, हम अपने दरवाजे पे बैठ रहे हैं, हम अपनी सड़क पे बैठते हैं, सड़क हमारे घर के सामने की है। तो उसके ज़्यादा बात बढ़ गई। पुलिस ने कहा कि अच्छा भाई आप जुलूस निकाल ले जाइए, हम एक चादर या खनात वगैरह लगा देंगे और तुम अपनी जगह बैठे रहो और जुलूस भी निकल जाएगा। उस साल तो किसी तरह पुलिस ने हल कर लिया, लेकिन दूसरे साल फिर वही झगड़ा शुरू हुआ। तो ये हुआ कि कहा अब तो नहीं जाने देंगे, 5 साल हो गया, अब तो हम नहीं जाने देंगे इधर से, हमारे मोहल्ले से। फिर वही झगड़े की नौबत आ गई। तो नतीजा ये हुआ कि फिर सीओ ने उसको नक़्ज़ अमन से बचाने के लिए और झगड़ा वगैरह से बचने के लिए मजबूरन ये कहा कि अच्छा भाई ठीक है, आप लोग नहीं हैं तो यानी झगड़ा हम नहीं करेंगे और वापस जा रहे हैं। इस तरह से बातें हुई। तो लेकिन आलम मुबारक जब वापस जा रहा था, बस वो सीन जो थी वो आज तक हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और कहीं कहीं लिखा भी है मेहर जासी वगैरह ने कि आलम मुबारक बिल्कुल सुर्ख हो गया था, और इतना सुर्ख हो गया था कि वो खूनी शक्ल में हो गया था। और वो आलम मुबारक ले तो गए, लेकिन फिर बड़े जोश व खरोश से वहीं से फिर जब वापस जाने लगे और यानी उससे दुगना चौगना जोश व खरोश के साथ मातम वहाँ होने लगा। रास्ता बदल दिया। फिर तीसरे साल फिर आपस में कुछ थोड़ा बहुत समझौता हुआ, कुछ शरीफ लोग, कुछ समझदार लोग बीच में पड़े, तो फिर वही पुराने रास्ते से जिससे हमेशा आते जाते थे वही खुल गया, झगड़ा भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये आलम मुबारक अपनी जगह पे बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा कि वो 13 सफ़र को जब इस मुकाम पर ये कंचाने और मुल्लाने का जो मोड़ है इस जगह पे पहुंचता है, तो उस जगह पर वो आलम मुबारक सुर्ख हो जाए। अब तो बहुत दिन हो गए, करीब ये 100 साल पहले की बात है। तो बहुत दिनों तक 10-20 साल तो रहा ही होगा। तो बिल्कुल सुर्ख हो जाता था और इसको मुअज्जिज़ाए आलम कहा जाता है। और लोग इसकी ज़ियारत के लिए ख़ास तौर से आते हैं और इसका एहतराम करते हैं। और अभी यानी जुलूस कामयाबी की तरफ और आगे ही जा रहा है। इसमें कमा का मातम खूब होता है, आग का मातम होता है, ज़ंजीर का मातम होता है। और सिर्फ यही नहीं कि खाली शिया, बल्कि यहाँ इस जुलूस में तो सुन्नियों ने भी खूब मातम किया, कमा का, आग का मातम किया। हम अपना बड़ा आलम बेग उन्हें भेजते हैं, वो लोग जाते हैं। हिंदू को भी हमने कई मरतबे ऐसा हुआ कि वो चले जाते हैं, आग का भी मातम किया उन लोगों ने इसी जुलूस में। नफीस साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने तो आग के ऊपर एक साल चटाई बिछाकर और उसके ऊपर नमाज़ पढ़ी और कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कामयाबी के साथ आगे बढ़ते चले गए और अभी तक ये कायम है, इंशाअल्लाह कायम रहेगा। मौला ने जिस तरह से नवाजा है इसी तरह से फिर खिदमत का मौका देते रहेंगे हमको और जो तमाम मोमिनीन को और हम सब के बाल बच्चों को फिर मौका देंगे और हम लोग इसी तरह और इससे और बेहतर तरीके से इस अज़ा को करते रहेंगे। तो ये थे जनाब मकबूल जायसी साहब, जिन्होंने इस जुलूस की तारीख़ और मुख्तसर तारीख़ और जो मालूमात थी आपके सामने रखी। आपको ये तारीख़ कैसी लगी, ये जुलूस कैसा है और किस तरह होता है, ये हम आपको आगे झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। अब से थोड़ी देर में जुलूस इंशाअल्लाह बरामद होगा और इसमें अंजुमन गुलदस्ते अज़ा जायस नौहानी और सीनाज़नी करेगी। हमें देखते